जिन्होंने उनकी अहलिया मोहतरमा को बेलघरिया की सरजमीन से उठा करके उनके घर तक लाया, जिससे मेरी मुराद मोहम्मद वसीम। कहाँ है वसीम? मोहम्मद वसीम आइए, तशरीफ लाइए। आपने बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि मैं आपकी तारीफ कैसे करूं। बस इस तोहफे की शक्ल में मैं तारीफ कर रहा हूं, आप इसे कबूल कीजिए। मैं इस इलाके के जो काउंसलर हैं मोहतरम अफजल हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने हाथ से जो नौजवानों ने एक तोहफे की शक्ल में मौज़िन साहब के लिए कुछ जमा किया है, आप अपने हाथ से मौज़िन साहब को अगर दें तो बेहतर है। और समाज के लिए कुछ पैगाम अगर आप पहुँचा दें कि मदरसा क्या है, दीनी दरसगाह क्या है, तालीम क्या है, आलिम क्या है, मुतालिम क्या है, टीचर क्या है और स्टूडेंट्स क्या हैं, इसके हवाले से आप तो बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करते हैं और आपकी गुफ्तगू बड़े बड़े स्टेजों में हुआ करती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने मोहल्ला के हवाले से कुछ ऐसा पैगाम भी दे दें जो उस पैगाम को सुनने के बाद कुछ उसे महसूस हो कि हम किस रास्ते पे थे और किस रास्ते पे चलना चाहिए। मैं मोहतरम अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और सबसे पहले अपने हाथ से मुअज्जिन साहब की बिला देखिए, इनकी उम्र देखिए, मुअज्जिन साहब इधर आएंगे थोड़ा सा देखिए, इनकी उम्र देखिए और ड्यूटी जो इन्होंने अपनी की है मैं दाद देना चाहता हूँ। और बहुत हार्ड ड्यूटी इनकी रहती है और टेंशन भी काफ़ी रहती है, उसके बावजूद भी जो है ये अटल रहते हैं। झूमकर के पूरा मजमा इनका इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, और जोर से ऐसे नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खजाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना मस्जिद के मुअज्जिन साहब, मदीना मस्जिद के मुअज्जिन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब एक साथ दे दीजिए, लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজকে আমার ইসলাম দরদি সকল ভাই এবং পর্দার আড়ালে মা ও বোনেদেরকে সবাইকে আরেকবার সালাম জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উপস্থিত এই মঞ্চ, আমার এখানে কথা বলা চলে না, যেখানে আওলাদে রাসূল আলেমে দ্বীনরা যেখানে বসে থাকে সেখানে কোনো সাধারণ মানুষের আলোচনা এবং কথা বলা চলে না। যারা আমাদের জাতির নেতা তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশে এক বরাবর লাইনে আমাদের কাতারে কাতারে আমাদের সঙ্গে আছে। এবং আজকে যে মাদ্রাসা কাদেরিয়া তাজুস শরিয়ত, এখানে মদিনা মসজিদের যে ইমাম সাহেব এই মাদ্রাসাটাকে বেশি দিন হয়নি আরম্ভ করেছে এবং আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এই মাদ্রাসা কিভাবে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এই মাদ্রাসা আমাদের অনেকের ধারণা হতে পারে যে উনি ওনার ব্যক্তিগতভাবে বানিয়েছে, কিন্তু এই মাদ্রাসা বানানোর দরকার ছিল আমাদের পাড়ার এলাকার মানুষের চিন্তা ভাবনা করার দরকার ছিল যে এখানে একটা তালিমের জায়গা তৈরি হোক, আমার বাড়ির মেয়েরা যেন পর্দা শেখে, ইসলাম বোঝে, তার সাংসারিক সুখের সংসারটাও হবে পরে অন্য কারোর বাড়িতে গেলে। এটা কিন্তু আমাদের কারোর চিন্তাধারা ছিল না। আমার বাড়ির ছেলেটা যেন দিন শিখতে পারে,
আমার বাড়ির ছেলেরা যেন কোরআন শিখতে পারে, হাদিস শিখতে পারে, সেটা আমাদের কারোর চিন্তা ধারণা ছিল না। কিন্তু সেটা আমাদের এখানে ইমাম সাহেব দীর্ঘ 10-12 বছর এখানে থাকার তার মহব্বতে এখানে একটা মাওলানা কাদেরিয়া তাজুল শরিয়ত মাদ্রাসা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এই মাদ্রাসা কেন প্রয়োজন আছে, এখানে বড় বড় আলেম দ্বীন এবং ইসলামের চিন্তাবিদরা তারা এখানে উপস্থিত আছে। আমি বাংলায় বলছি, আশা করি সবাই বাংলা বুঝি। এখানে কোরআন ও হাদিসের আল্লাহ যখন মনে হবে এখানে কোনো কোরআন পড়ার হাদিস পড়ার লোক থাকবে না, এবং আল্লাহর ওপর থেকে যখন ফেসলা হয়ে আসবে যে এই পাড়াটা চলে যাও, এখানে ফেরেশতাদেরকে যখন আল্লাহ অর্ডার দেবে, যাও ফেরেশতারা, আমার মালাইকারা, যাও এই পাড়াটাকে ধ্বংস করে দাও, ওখানে আমার নাফরমান বান্দা প্রচুর হয়ে গেছে। কিন্তু ফেরেশতারা এসে দেখবে যে এই মাদ্রাসা তাজুল শরিয়তে কোরআনের আওয়াজে গুনগুন করে শব্দ হচ্ছে, কিছু ছোট বাচ্চারা কোরআন তেলাওয়াত করছে। এই ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে আবার পৌঁছে গিয়ে বলবে, আল্লাহ ওই এলাকাকে ধ্বংস করতে পারিনি কেন, ওই এলাকার মধ্যে তোমার নবী এবং তোমার কোরআনের হাদিসের কথা হচ্ছে, তার জন্য আমি আর এই এলাকার দিকে ধ্বংস করতে পারিনি, আল্লাহ তোমার কাছে আবার আসলাম। এই মাদ্রাসার ইমাম সাহেবকে ধন্যবাদ জানানো দরকার আমাদেরকে। উনি শুধু আমাদের কথা ভাবেনি, আমাদের সকলকে যেন আমরা পিছিয়ে না যাই, আমরা কোরআন হাদিস থেকে পিছিয়ে না যাই। আজকে আমাদের খুব বাজে একটা দিন আসছে। আইলাম মোহাম্মদের প্রত্যেকটা জায়গায় লেখাতে আইলাম মোহাম্মদ, যে আমি নবীকে ভালোবাসি, আমার অন্তরের স্থল থেকে আমি ভালোবাসি। সেই জায়গাগুলো অনেক জায়গায় দেখছেন, সেই জায়গাগুলো বিরোধ হতে হচ্ছে, অনেক জায়গায় মার খেতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় এখনো পর্যন্ত আমাদের যে সরকার আছে, এখনো পর্যন্ত আমাদের এই দিকটা খুব সুন্দরভাবে রেখেছে। এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে দেবে না, উনি হবেও না আশা করা যায়। তো সবাই এই সাম্প্রদায়িকের বিরুদ্ধে আমাদেরকে একসঙ্গে থাকতে হবে, এবং এই মাদ্রাসাকে দেখতে হবে যেন সবাই মিলে এই মাদ্রাসাটা যেন বন্ধ না হয়। এই মাদ্রাসায় 30 থেকে 40টার ওপরে মনে হয় ছেলের বাচ্চারা আছে, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে। যার যেরকম আমাদের সমর্থক হবে আমরা সেইভাবে সবাই হেল্প করার চেষ্টা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য বেশিক্ষণ আমি দীর্ঘায়িত করব না। হুজুরকে জিজ্ঞেস করবো যে এখানে কিতনা বাচ্চারা देखिए, अफजल साहब ने ऐलान किया कि मैं 300 किलो चावल आपके मदरसे में इनायत करूंगा, मैं दूंगा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। সবাইকে আরেকবার সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हमने तो जोड़ अगर आप हंसे आए लेगा एक हंस Super
करने हिलाने न देगा, ठीक है ना भाई, खुद देखिएगा ना, फिर चार हिलाने न देगा। हज़रात, अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के मैं खतीब इमाम अब्दुल्ला मस्जिद के जो खतीब इमाम है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्शिद आलम साहब, जो हमारे मदरसे यानी मदरसा कादरिया फैज़ान ताजुशरिया के उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनके बारे में इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कुछ दुआया कलिमात हमारे सामईन को पेश फरमाएँ। स्टेज पे बैठे हुए बावक़ार उलमाए किराम और हुफ़ाज़े अल्लाह और सुनने वाले बावक़ार सामिईन मोहतरम व पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए बिला तमहीद थोड़ी सी बात आप हज़रात तक पेश करूँ, उससे पहले हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र, एहसान और फ़ज़्ल इलाही है कि अल्लाह ने अपनी बंदगी और हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया है। बिरादरान मिल्लत की सलामियाँ, आज हम और आप आज एक बहुत ही अज़ीम व शान जश्न ग़ौफ़ुल वरा जो इनामी मुक़ाबला है मदरसा कादरिया फैज़ान ताजुशरिया व उम्मुल खैर फ़ातिमा के बैनर तले हम लोग आज यहाँ पे हाजिर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर इस महफ़िल पाक में हम सबों को आना और यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूँगा हज़रत अल्लामा व मौलाना इरफान मुजाहिद रिज़वी साहब को कि जो आप हज़रात के इलाके में आए, जबकि ये शोलापाड़ा ये गरीबों का इलाका कहा जाता है और जहाँ के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं। तरह तरह की बातें आपके इलाके के ताल्लुक़ से मुझे सुनने को मिला, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम इरफान मुजाहिद साहब आपके इलाके में आए, पहले छोटी सी मकतब को कायम किया, फिर आप हज़रात ने उनका सपोर्ट दिया। आज एक अज़ीम शान एक बेहतरीन किला मदरसे की शक्ल में मदरसा कादरिया फैज़ान ताजुशरिया व उम्मुल खैर फ़ातिमा आज खड़ा हुआ और इस मदरसे के बच्चे और बच्चियां आप हज़रात के बीच आए और
मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या तालीम दी जाती है और मदरसे से बच्चों को क्या मिलता है, आप हजरात आज असर के बाद से लेकर अब तक देख रहे हैं। आप हजरात जो इस मदरसे में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिए, जो ताउन किए, और आपने जो अपने इस मदरसे में अपने कीमती गाड़ी और हलाल की कमाई को दिया, तो आपका वो रुपया बेकार नहीं गया, बल्कि अगर बच्चियां हैं, वो बच्चियां जो कभी पर्दा नाम का वर्ड उसको पता नहीं था और वो पर्दा करना नहीं जानती थी, लेकिन जैसे मदरसा कादरिया फैजान ताज शरिया और उम्मुल खैर फातिमा में एडमिशन लिया, शुरू दिन ही से उसे कनीज़े फातिमा बनाकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि उन्हें सीरत हसना उन्हें सिखाया गया। और वो आज अगर कलकत्ता और टीटागढ़ के किसी इलाके में अगर वो जाती है, चाहे वो ट्यूशन हो या स्कूल कॉलेज हो, बेहया आवारों की तरह वो बन के नहीं जाती है, बल्कि एक इस्लाम की मुकद्दस खातून बनकर जाती है। ये देने वाली जात कौन है, ये कहां से आपको मिला, तो आपको कहना पड़ेगा। और आप हर एक हजरत मौलाना इरफान मुजाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करें, और आपने जो मेहनतें की उसका रंग भी लाया और रंग आज देखने को मिला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे महबूब आप अपने रब की बारगाह में ये अर्ज करें, ऐ मौला मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। याद रखिए मेरे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में 787 मरतबा इल्म का जिक्र आया है और कुरान में 19 मरतबा पढ़ने का जिक्र आया है, और फिर उसी कुरान में 4 मरतबा कलम का जिक्र आया है, जिससे इंसान तालीम हासिल करता है। इससे पता चलता है इंसान अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर दुनिया में वो कामयाब होना चाहता है, सबसे पहले उसे इल्म हासिल करना होगा। अब हुजूर की जिंदगी देखें, जब हुजूर मेरे आका दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए थे, तो क्या अरब का क्या माहौल था। अरब के लोगों को जाहिल कहा जाता था, वो जमाना जाहिलियत जो है कहा जाता था। उस समाज में हर किस्म की बुराई थी, औरतों को जुल्म किया जा रहा था, गुलामों के साथ ज़्यादतियां की जा रही थी, और औरतों को जो है जीने का कोई शऊर नहीं था। हर तरह के समाज में बुराई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहिए, हर तरह की बुराई थी, तो क्या चाहिए था कि समाज में अगर कोई बुरा, मिसाल के तौर पर छोटी छोटी बच्चियों को जो है जिंदा दरगोर किया जा रहा था, तो सबसे पहले कुरान के ये आयत नाजिल होनी चाहिए, ऐ मेरे महबूब आप लोगों से कहिए कि बच्चियां को तुम दफन मत करो। इसी तरह जो है अगर किसी का बाप इंतकाल हो जाता, छोटे बच्चे अगर रहते, उसकी जायदाद पे नाजायज कब्जा कर लिया जाता, तो आयत करीमा नाजिल हो जाती। ऐ मेरे महबूब आप लोगों से कहिए अगर कोई यतीम बच्चा है उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। हर तरह के समाज में बुराई थी, आखिर इस बुराइयां का खात्मा कैसे हो, तो इस बुराई के खात्मा के लिए किसी और चीज का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह ने अपने महबूब पर जो सबसे पहली आयत करीमा नाजिल फरमाई, और जो आयत करीमा क्या थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी तालीम की आयत, तालीम के ताल्लुक से आयत करीमा नाजिल हुई। क्या मतलब, एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, एक बंद कमरा है, वो बंद कमरे में सांप भी है, वो बंद कमरे में बिच्छू भी है, वो बंद कमरे में कीड़े मकोड़े भी है, हर तरह की तकलीफ देने वाली चीज है। लेकिन आप अगर चाहेंगे मैं सांप को भी भगा दूं, मैं बिच्छू को भी भगा दूं, हर किस्म के तकलीफ देने वाली चीज को मैं खात्मा कर दूं, अगर आप एक एक के मारना चाहिएगा तो बहुत ज्यादा दिन तक लग जाएगा और वो खत्म नहीं हो पाएगा। उसके लिए कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए, अगर एक काम किया जाए, सांप भी भाग जाए, बिच्छू भी भाग जाए, वो काम क्या है, वो बंद कमरे में जहाँ सांप भी है, बिच्छू भी है, हर तरह के तकलीफ
देने वाली चीज है, लेकिन अगर उस कमरे के अंदर आप अगर बल्ब जला देते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं, अगर उस कमरे में आप रोशनी अगर पैदा कर देते हैं, वो लाइट के रोशनी में सांप भी भागता हुआ नजर आएगा, बिच्छू भी भागता हुआ नजर आएगा, हर तरह की तकलीफ देने वाली चीज भागता हुआ नजर आएगी। क्या मतलब? इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका का फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है। क्या मतलब? अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो, इल्म हासिल करो, शोहरत चाहते हो, इल्म हासिल करो, बुलंदी चाहते हो, इल्म हासिल करो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक जलीलुल कद्र नबी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने सुना है पूरी दुनिया में सिर्फ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसमें 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे, लेकिन जो मुसलमान थे उसमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनकी हुकूमत परिंद पर भी थी, इंसानों पर भी थी, जिन्नातों पर भी थी। आखिर ये पावर, ये हुकूमत कहां से उन्हें मिली? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने 3 चीजों को रखा, हुकूमत को रखा, इल्म को रखा और उसके बाद जो है दौलत को रखा। और अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम इल्म को इख्तियार करो या दौलत को इख्तियार करो या फिर हुकूमत के इख्तियार करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोचने के बाद फैसला क्या करते हैं? इल्म को ठोकर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दौलत को ठोकरा देते हैं, हुकूमत को ठोकरा देते हैं, इल्म को मुंतखब करते हैं। इल्म की बरकत से हुआ क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया और आपने इल्म को मुंतखब कर लिया है, इल्म की बरकत से जाओ मैंने दौलत भी अता कर दी और हुकूमत भी अता कर दी। क्या पता चला? अगर आप दुनिया में हुक्मरानी चाहते हैं आपको इल्म हासिल करना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम अपनी औलाद के साथ 3 एहसान करते हैं लेकिन आपकी औलाद भूल जाती है। आप अपनी औलाद के साथ पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं। आपकी औलाद इस एहसान को भी भूल जाती है। आप अपनी औलाद के साथ दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद आपके एहसान को भूल जाती है। इसी तरह तीसरा एहसान हम क्या करते हैं? अपनी औलाद के लिए हम अच्छा से अच्छा घर बनाते हैं, बेहतरीन बिल्डिंग बना कर देते हैं, लेकिन इस एहसान को नहीं मानते हैं। लेकिन किताबों में आया है अगर अपनी औलाद को दौलत न दो, अपनी औलाद को शोहरत न दो, अपनी औलाद को अब तुम जो है बिल्डिंग मत बनाओ, लेकिन एक काम कर दो, तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी तुम्हारी औलाद तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। तुम जमीन के अंदर चले जाओगे तब भी वो एहसानमंद रहेंगे। वो कौन सी चीज है? वो तालीम है। अपनी औलाद को तालीम दे दीजिए, वो हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। इसी तरीके से एक और बात सुनिए, देहाती में बात करने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग अनाज खाते हैं, दाल है, आटा है, वो गेहूं से बनता है, चावल खाते हैं, ये सब कहाँ तैयार होता है? बोलिए, ये जमीन के अंदर जिसको खेती कहा जाता है। खेती में जो है ये तमाम चीजें बोया जाता है, उसके बाद फिर जो है एक किसान को अच्छा फल मिलता है। याद रखिए, किसान 3 काम करता है, उसे अच्छा गल्ला मिलता है। अगर आप चाहते हैं आप 3 काम करेंगे, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, अल्लाह आपको अच्छी औलाद अता फरमाएगा। वो 3 काम क्या? किसान पहला काम क्या करता है? वो अपने खेत को तैयार करता है। खेत है, पहले उसको जोता जाता है, उसके जो है मिट्टी को एकदम नरम, हलवा की तरह नरम बना दिया जाता है। पहली चीज वो खेत को तैयार करता है। खेत मिसाल है माँ की,
माँ जितना ज्यादा अच्छी होगी, औरत खातून जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उसका कोख का जन्ने वाला पैदा होने वाला बच्चा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए पहली चीज जब अपने बेटे के लिए बहू तलाश कीजिए या आप अपने लिए बीवी अगर तलाश करें तो सबसे पहले ये देखें आपके जो आने वाली शरीके हयात है वो चाल चलन के कैसी है, वो शरीयत के पाबंद है कि नहीं। और किसान दूसरा काम क्या करता है, खेत जब तैयार हो जाता है अच्छा से अच्छा बीज डालता है, अच्छा से अच्छा बीज डालता है। बीज ये मिसाल है बाप का, बाप जितना ज्यादा अच्छा होगा उसका होने वाला बच्चा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक बन जाए, आपकी औलाद अच्छा किरदार का इंसान पैदा हो, तो आपको सबसे पहले अच्छा बनना होगा। और किसान तीसरा काम क्या करता है, वो वक्त पर खाद देता है, वक्त पर पानी देता है, और कीड़े मकोड़े वाली चीजों, कीड़े मकोड़े से भी अपने फसल को बचाता है। ये मिसाल है। आप अपनी औलाद को अगर बच्चा पैदा हो जाए, वक्त पर स्कूल के टाइम पर स्कूल भेजिए, कोचिंग के टाइम पर कोचिंग भेजिए, और मदरसा के टाइम पर मदरसा भेजिए। अगर ये तीन काम आप करते हैं, अल्लाह आपकी औलाद को वो तरक्की अता फरमाएगी कि दुनिया का कोई इंसान आपकी औलाद को रोक नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, आज हम मुसलमान तालीम में बहुत ज्यादा पीछे हैं। आज हमें तालीम के नाम पे न जाने आज दूसरे कंट्री या कहीं और जाते हैं, और गैरों के नजर में हमें वो लोग जाहिल समझता है, जिसके वजह से हमारे बच्चों के साथ जो है ज्यादती और जुल्म किया जाता है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके इलाके में मदरसा कादरिया फैजान ताजुश शरिया व उम्मुल खैर फातिमा यानी लड़कों का भी मदरसा है, लड़कियों का भी मदरसा है। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपका फरमाबरदार हो जाए, आपकी औलाद आपका कहना माने, आपकी औलाद सोसाइटी समाज के लिए बेहतरीन इंसान बने, आपको मदरसा भी पढ़ाना होगा, और आप अपनी औलाद को स्कूल भी पढ़ाइए। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं आप अपनी औलाद को दुनिया के हर फील्ड हर मैदान में अगर वो कामयाब हो, एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो औलाद है दुनिया में वो हर बच्चे को पीछे छोड़ दे, वो खुद आगे बढ़ जाए, एक तरीका बताता हूँ। अगर आप अमल करेंगे आपकी औलाद को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तरीका क्या है, आपका अगर छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है, सबसे पहले 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए। कहाँ पढ़ाइए? 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, और 5 साल जब स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ले, उसको स्कूल से निकाल कर मदरसा में एडमिशन करवाइए, और उसे